about the physical properties of alkanes from the chapter hydrocarbon. Now, as I told you, that the physical property of alkane, what are physical property? Boiling point, melting point, density, solubility, etc., etc. All these points, they completely depend upon the intermolecular forces of attraction. They completely depends upon intermolecular forces of attraction. As I told you from the very beginning that alkanes, they are not polar molecules. Alkanes are basically non-polar molecules. What are alkanes? Alkanes are basically non-polar molecules. अब non-polar क्यों? सीधी सी बात है, दो तरह की बॉन्डिंग है, एक तो CC बॉन्ड और दूसरा CH बॉन्ड. And these both type of the bonds in alkane, they are actually covalent bonds. What they are? These both type of bonds in alkanes, they are actually the covalent bonds. Is this clear? So obviously we all know कि polar molecules में क्या होता है? The intermolecular forces of attraction, they are strong. But in non-polar molecules, the intermolecular forces of attraction is weak, or we must say the weak van der Waals forces of attraction. The magnitude of the force of attraction, it also depends upon the surface area. So greater the surface area, as I said, greater the surface area, ठीक है, stronger is the van der Waals forces of attraction किनमें? In terms of alkanes. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं. आइए सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज व्हाट यू कॉमनली कॉल एज बॉइलिंग पॉइंट. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड बॉइलिंग पॉइंट, you all know it very well कि in terms of alkanes, when I am talking the word about boiling point, आप सब जानते हैं कि straight chain alkanes में, straight chain alkanes they are also called as N-alkanes, ठीक है, और नॉर्मल एल्केन्स. तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स में जो फर्स्ट फोर मेंबर है, फर्स्ट फोर मेंबर मतलब कहां से? C1 से C4. कौन कौन से वो? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. दीज आर गैसेस. द फर्स्ट फोर मेंबर दे आर गैसेस. इज दिस क्लियर? और नेक्स्ट 13 मेंबर, नेक्स्ट 13 मतलब C5 से लेके C17 तक, दीज आर लिक्विड्स. C5 मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, etc. till C17 they are all liquids. You must remember that they are all liquids. और उसके बाद C18 onwards जितने भी एल्केन्स हैं they are waxy. एक तरीके से देखा है तो they are waxy solids. Clear? Right? अब एक चीज याद रखेंगे कि स्ट्रेट चेन एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फेयरली इंक्रीज होता है. इज दिस क्लियर? क्लियर? इंक्रीज कैसे होता है? जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन इज आल्सो इंक्रीजिंग. आई रिपीट, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट चेन एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. और कितना इंक्रीज होता है? ऑन एन एवरेज 20 to 30 केल्विन. 20 to 30 केल्विन ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नया कार्बन या CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है द वेरी सक्सेसिव नेक्स्ट एल्केन. तो दैट इज व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर्स और राइजेस फ्रॉम 20 to 30 केल्विन. इज दिस क्लियर? राइट है ना? ये चीज याद रखेंगे. बट इसमें मैं आपको जो खास चीज बताने वाला था वो याद रखेंगे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, increase in the boiling point with straight chain and alkanes. क्या बोला मैंने? With straight chain and alkanes, it increases due to the addition of carbon content or increase in the molecular mass. Is this clear? तो ये चीज आपको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ. जैसे आइसोमेरिक एल्केन्स बता रहा हूँ. आइसोमेरिक means which follow isomerism. And what is isomerism? Practically, what is isomerism? Having the same molecular formula but different structures. Is this clear? तो आइसोमर्स, तो आइसोमेरिक एल्केन्स में अगर आप देखेंगे ब्रांच एंड आइसोमर, they have lower boiling point than the corresponding N-alkenes. Is this clear? Right? तो ब्रांचिंग के साथ साथ क्या होता है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो स्फीयर के रूप में आ जाता है.
It tends to follow the shape of a sphere. तो सरफेस देखिए, ब्रांचिंग बड़ी सीधी सी बात, मैं आपको ब्रांचिंग वाला एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो अभी मेरे हाथ में मैंने एक बूंद पानी लिया, सपोज मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप पानी लिया, ठीक है, लेकिन अगर उसी पानी को मैंने फैला दिया अभी, तो उसका क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो वो फास्टली एवापोरेट करेगा. बट वो एक बूंद पानी एवापोरेट करने में हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 20 मिनट, उससे ज्यादा भी नहीं. यहाँ पे भी वही चीज, the same rule is applied in terms of alkanes. I repeat that the same rule is applied in terms of alkanes. Alkanes के साथ में भी ये होता है. क्लियर कि आप जब ब्रांचिंग कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेट चेन है, जैसे मान लो डेकेन है, तो वो ऐसे लंबा जाएगा, बट लेकिन अगर ब्रांचिंग होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक कम एरिया में सिकुड़ के रह जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, इज दिस क्लियर, राइट. तो याद रखेंगे कि ब्रांचिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग में क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. पॉइंट इज क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसमें, बट ये चीज आपको याद रखना है. क्लियर, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, और उसको तोड़ने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो उसका रिजल्ट क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर्स, they are lower than alkane and alkanes. The boiling point of branch chain isomers, of branch chain isomers, clear, is lower than n alkanes or normal alkanes. Straight chain alkanes भी बोल सकते हैं उसको. एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट मी सी, देखिएगा बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से देखिएगा. जैसे n पेंटेन, अब n पेंटेन हम कैसे बना रहे हैं, टर्मिनल्स में कितना दिया, देन CH2 1 2 3 4 और ये 5. तो दिस इज एन स्ट्रेट चेन है, दैट मींस दिस इज n पेंटेन. और अगर आप इस n पेंटेन में देखोगे तो याद रखिए इसमें कोई ब्रांचिंग दिखाई दे रही है क्या, नो ब्रांचिंग. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 309.1 केल्विन. यू मस्ट रिमेंबर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 309.1 केल्विन. क्लियर, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेन बनाना शुरू कर रहा हूँ, आइसोमर बनाना शुरू कर रहा हूँ. अगर मैं इसको, मान लीजिए ये मैंने बनाया है, कोई बता सकता है क्या बनाया है मैंने, anyone, CH2 CH3, what is this structure called as? Yes, yes, you can answer. This structure is a little louder, एक साथ, आइसोपेंटेन, राइट. आइसोपेंटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, its boiling point is, याद रखेंगे, 301 केल्विन, as I told you. तो देखिए, look at here, ये स्ट्रेट चेन था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 309.1. लेकिन जैसे ये ब्रांचिंग होना शुरू हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू. अगर मैं और एक ब्रांचिंग की बात करूं, एक छोटे से और एक ब्रांच की, अभी तो मैंने आइसो स्ट्रक्चर लिया, अब मैं यहाँ पे सपोज नियो स्ट्रक्चर ले रहा हूँ. इफ आई एम टेकिंग अ न्यू स्ट्रक्चर, सपोज इन केस न्यू स्ट्रक्चर मतलब मान लीजिए मैंने ये ले लिया, CH3C CH3 CH3 CH3, सपोज मैंने ये ले लिया. इन केस व्हाट इज दिस, दिस इज नियोपेंटेन. ठीक है, इसमें कितना ब्रांच था, वन ब्रांच. इसमें कितना था, वन ब्रांच. और इसमें कितनी ब्रांचिंग है, टू ब्रांच. हियर यू हैव टू ब्रांच. देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कि नहीं, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ गई है. इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 282.5 केल्विन. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज हाउ मच, 282.5 केल्विन. तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, क्या चीज कम होते जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर. तो एज ब्रांचिंग राइजेस, boiling point decreases because due to the lesser surface area. Getting me? You must remember this point. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये this is what you call as boiling point. अब इसके बाद मैं एक और टॉपिक पे आता हूँ,
Let us come back to one more topic, and that is melting point of alkanes. Let us talk about melting point of alkanes. इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में हमेशा रहे, क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम बच्चे इसको भूल जाते हैं। पढ़ते तो हैं पर वो उसको माइंड में नहीं रखते। तो ये कोशिश करूंगा ना कि कुछ ऐसा बताऊं आपको कि वो आपके माइंड में रहे। क्लियर?